Today we have Yuki Datta with us, and he belongs from West Bengal, and he has been my student from 2022. At that time, he was in class 12. In fact, he had done 12th and he was preparing for technical entry scheme of Indian Navy. And let me tell all the students that he has been recommended from SSB 4 times. And first time he was medically out. Rest 3 times he was already selected and is waiting for his various merit list. So Priyojit, tell something about yourself, like your family background, what does your father do, what do you where do you belong from exactly? Yes, sir. Sir, I'm Priyojit Datta. So, first of all, sir, I belong to Kolkata, West Bengal. And sir, talking about my family background, sir, I belong to completely civil background. My father is working in sales and management in Parle Biscuit Company. And there are four members in my family. My parents, and I also have one elder sister. So that's all, sir, about my family background. ओके सो सिंस व्हेन प्रियोजीत आर्मी के बारे में आर्मड फोर्सेस के बारे में कब से सोचना शुरू किया व्हाट वाज योर इनिशियल Sir, इंक्लिनाइजेशन टुवर्ड्स देम yes, sir. Sir, my uncle was there in the Indian Navy. He retired as a commander. So in childhood, I used to listen the stories from him, like the life which is there in defense, and after also got to know about the various activities that he can. After listening all this, sir, I got fascinated to join the services. Initially, I was inclined towards Indian Navy only because of him and also because of the uniform. Got recommended also. After that, sir, it was not there in my destiny. So, sir, maybe, sir, I have got joined for Air Force and Army and going to join Army. ओके सो प्रियोजीत ऐसा होता है दोस्त के लोगों के लिए एक एक रिकमेंडेशन भारी होता है एक एक रिकमेंडेशन के लिए लोग रोते हैं तुम्हारे चार चार हैं Yes, तो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट कैसे शुरू हुआ yes. So, as sir, I have told you, my uncle first told me about the armed forces. So, he was the first one to tell me about NDA exam. After class 10, sir, NDA के लिए मैं preparation start किया था, 11 and 12 में. Then after, sir, I appeared in NDA, cleared it in my first attempt. तो फिर in my first attempt, sir, I did not take any coaching. Written के लिए मैं कभी coaching नहीं लिया था. Even for SSB also, I was kind of overconfident कि SSB का तो हो ही जाएगा. Means क्या ही होगा वहाँ पे कोचिंग देखें तो आई जस्ट टू गाइडेंस फ्रॉम माय अंकल ओनली कि क्या होता है एंड देन आफ्टर आई वेंट फॉर माय एसएसबी इन बैंगलोर और दैट टाइम सर आई डिड नॉट एबल टू परफॉर्म वेल बिकॉज आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ और उसके अलावा व्हेन आई सॉ द जीटीओ स्ट्रक्चर्स फॉर द फर्स्ट टाइम I was kind of confused and also blank. So at that moment of time, I decided not to waste this attempt, rather to observe what is the requirement of the process, how to tackle those structures and all. तो फिर वो पूरा अटेम्प्ट मैं ऑब्जर्वेशन में निकाला उसके अलावा नेक्स्ट था अटेम्प्ट वंस अगेन फॉर द नेवी एनडीए एंट्री की थ्रू था और उस टाइम आई वाज फाइंडिंग ए गाइड एक्चुअली आई डिड नॉट वांट टू गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग फीस फीस ऑल्सो वेरी हाई और उसके अलावा मुझे लगता है 15 और 20 डेज में क्या ही हो जाएगा मतलब क्या ही चेंजेस ला देगा इससे बेहतर है कि एक गाइडेंस दैट मिल जाए शोज मुझे योर तो एट दैट प्रेजेंस मोमेंट ऑफ ऑफ माइंड दैट शोज योर राइट प्रेजेंस ऑफ माइंड राइट उसके बाद सर वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही वाज हैविंग अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन तो फिर हिज अटेम्प्ट्स हैड बीन ओवर तो ही सेड कि यू टेक माय अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेट फॉर 2 months so I took from him and then after started watching videos there. So many teachers were there and at that time I came across you. Mainly sir I started watching your site videos. फिर I used to also make notes and all. फिर उसके बाद जो है जीटीओ का देखा. And the way you were teaching there, जीटीओ का फिर लगा कि ऑनलाइन में भी इतना क्लैरिटी मिल सकता है स्ट्रक्चर्स एंड ऑल. फिर I was thinking कि you would continue there, but at that moment of a time also you left unattended. फिर उसके बाद we had a group when those who were preparing for our services is West Bengal से Arnav, Ankit and all. So one day evening, Ankit sent me one advertisement of yours कि you are going to start online coaching classes and वो Zoom meet पे होगा and all. I just saw that and I enrolled myself for those classes. उसके बाद सर वो 8 PM में
we used to join every day your classes and all. फिर मेरा GTO में mainly I didn't able to perform well वो ग्राउंड में आउटडोर टास्क पे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट फिर आफ्टर टेकिंग योर क्लासेस एंड ऑल आई वेंट फॉर माय सेकंड एसएससी दैट वाज आल्सो इन बेंगलोर और उस टाइम सर आई वाज ओवर परफॉर्मिंग माय ग्रुप मेंबर्स सेड कि यू आर डूइंग ग्रुप डिस्कशन इन पीजीटी कि दो तीन सॉल्यूशंस दे रहे हैं स्ट्रक्चर फिर आई वाज वंस अगेन कॉन्फिडेंस आउट दैट द रीजन फॉर दैट वाज माय ओवर कॉन्फिडेंस एंड आल्सो ओवर परफॉर्मेंस इन जीटीओ एंड उसके बाद जो है आई डिस्कस दैट टू यू आल्सो एंड यू गिव मी सम आइडियाज एंड ऑल फिर नेवी में गया एंड आई गॉट रिकमेंडेड फॉर नेवी एंड दिस टाइम सर आई वाज मेडिकली अनफिट अनफॉर्चुनेटली फिर लगातार और 3 बार रिकमेंड जी मालूम है यार, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग एट अन अकेडमी इन 2019, उस टाइम पे एवरीबडी हैड ए कंसेप्शन दैट इफ यू वांट टू क्लियर जीटीओ कम ऑन ग्राउंड, है ना? बट आई नेवर बिलीव्ड इन इट। जीटीओ के लिए इट इज अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड द थ्योरी, दैट इज स्टॉपर सपोर्ट थ्योरी जो है। एंड वंस यू नो इट ना, एनी ऑब्स्टिकल कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, एनी स्ट्रक्चर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि ऑनलाइन नहीं हो सकता है जीटीओ भी। एंड ठीक है, उस टाइम पे अर्नब वाज विद यू ओनली, ही गॉट रिकमेंडेड, और भी एक दो तीन चार बच्चे तुम्हारे बैच के हुए थे, तो इट इज गुड। अच्छा, तो अब ये बता कि लाइक इन ऑल योर एसएसबीज, इफ वी कंपेयर जीटीओ, इंटरव्यू एंड साइकोलॉजी, तो किसमें यू विल रैंक योर सेल्फ द बेस्ट? फिर जीटीओ में बट बाकी मेरा स्टोरीज वगैरह जब आई कम फ्रॉम मतलब साइक रूम वो हॉल से आता हूँ वी डिस्कस तो सारे मुझे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं बोलता है इतना आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं बट फ्रॉम माय साइड सर आई से कि जीटीओ ही है मेरे साइड से तो बेस्ट अच्छा, जैसे यू आर फ्रॉम ए कम्प्लीटली सिविलियन बैकग्राउंड, एंड अभी तक आई डोंट फील लाइक यू आर सो मच एक्सपर्टीज इन स्पीकिंग इंग्लिश, एंड यू आर वेरी गुड, यू कैन प्रोनाउंस हावर टाइप इंग्लिश एंड ऑल दैट। तो कभी ये नहीं दिमाग में आया कि यार इंग्लिश पे भी काम करना चाहिए? आई एम नॉट फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो मेरा नहीं होगा, मतलब। और दूसरी बात ये कि तेरे 4 इंटरव्यूज हैं, तो चारों एसएसबी इंटरव्यू में जस्ट टेल मी व्हाट ऑल दे आस्क अबाउट आर्मी और एयरफोर्स एंड नेवी, व्हाट ऑल यू कैन रिकॉल। Talking about English, sir, strange thing is I completed my schooling and college both from government schools and colleges. तो फिर बंगाली मीडियम से था फर्स्ट ऑफ ऑल और सेकेंडली कॉलेज तो वाज इन इंग्लिश तो इंग्लिश वाज नेवर अ बैरियर बिकॉज वो फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल आई यूज्ड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश बिकॉज पहले से ही था कि आई मस्ट बी फ्लुएंट इनफ इन इंग्लिश अदरवाइज कुछ भी मतलब जितना भी हो जाए एजुकेशन वगैरह में चले जाओ जितना भी क्वालिफिकेशन हो इट्स अ बेसिक थिंग दैट यू कैन कम्युनिकेट एंड ऑल तो फिर इंग्लिश के लिए उतना कुछ अलग से नहीं किया था बट स्टिल विद पेन एंड ऑल जो है इंग्लिश में बात करना एंड ऑल वो तो था उसके अलावा सर एज यू वर सेइंग कि मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ तो आर्मी वगैरह के बारे में क्या पूछा था तो मोस्टली सर इंटरव्यू में जनरल जो क्वेश्चन होता है आर्म सर्विसेज क्या क्या होता है फिर अगर आर्टिलरी को कोई ज्वाइन करना चाहता है तो फिर व्हाट आर द आर्म्स देयर इन आर्टिलरी तो ऐसे ही मैं एविएशन ज्वाइन करना चाहता था तो फिर मुझे एविएशन के बारे में पूछ रहा था फिर और कुछ चीजें जैसे कि आर्मी का फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया फिर नेवी में जैसे कि कमांड्स वगैरह तो ऐसे नॉर्मल चीजें पूछते हैं विच आर इजीली अवेलेबल ऑन विकिपीडिया एंड अदर वेबसाइट्स तो कोई अगर चाहे हैव द क्यूरियोसिटी देन इजीली एक्सेस दोस थिंग्स एंड रीड Okay. Did they ask you any technical questions like when you went for the naval entry in 12th, which you were recommended in? तो कुछ टेक्निकल, ये बड़ा बच्चों को बड़ा डर होता है सर, टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन है मेनली तो सर सिंपल फिजिक्स का लॉज वगैरह ही पूछते हैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हो गया फिर बुएंट फोर्स वगैरह पूछ गया बर्नौल्स थ्योरी वगैरह इससे ज्यादा मतलब 9th 10th का अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड व्हेन यू आर क्लियरिंग एग्जाम लाइक एनडीए फिर सीरियस आपका एनसीईआरटी 9th 10th का नॉलेज कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए उस टाइम पे तो फिर इजीली आंसरेबल वहां पे अगर प्रेशर ले लिए वो क्वेश्चन में क्योंकि बहुत लोग आर अवेयर ऑफ द आंसर लेकिन वहां पे जाके ना टेंशन में बर्नौल्स प्रिंसिपल की जगह आर्किमिडीज का बता देगा आर्किमिडीज का
वो प्रेशर हैंडल करके कॉन्फिडेंस मेंटेन करके अगर आंसर दे पाए तो बस दैट्स इट। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 5-6 क्वेश्चन, जैसे कि आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन जूलॉजी। अब जूलॉजी में मुझे हर बार जितना भी क्वेश्चन पूछता है आई डोंट एबल टू आंसर अ सिंगल, क्योंकि कभी नाम ही नहीं है ऐसा स्पीसीज का नाम बता के बोलते हैं उसका हम्म। क्लासिफिकेशन ये। तो आई सिंपली हैव अ स्माइल ऑन माय फेस और सर को बता देता हूँ आई एम नॉट अवेयर ऑफ। कभी कभार तो ऐसा भी सुनने को मिलता है, तो जूलॉजी में किया है ऑनर्स या फिर कुछ और सब्जेक्ट है, गलत लिख दिया। तो इट हैपेंस, बट वही कॉन्फिडेंस वगैरह मेंटेन करना एंड यार प्रेशर देख, ना ले। मतलब व्हाट आई फील लाइक इज कि ब्लफिंग विल नॉट वर्क। तुम्हें अगर कुछ राइट। नहीं मालूम है देन सिंपली टेल कि नहीं मालूम है। लोग एक थर्ड डायमेंशन बनाना चाहते हैं कि नहीं इसका भी कुछ होगा, एवरी क्वेश्चन डज नॉट हैव एन आंसर। ओके ओके। सो अभी लाइक अभी बीन रिकमेंडेड, तो क्या ज्वाइन करने का मन था, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी? मन, ये बात अलग है, ऑब्वियस। ज्वाइन क्या करेगा? इट वाज सर नेवी। ओके ओके। सो आई एम। योर जर्नी वॉज क्वाइट लॉन्ग, प्रियोजित, है ना? यस सर। और अभी यू हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मतलब एक स्टेप वाइज अगर सिंप्लीफाई करें हम नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, तो व्हाट डू यू रिकमेंड अ गाय हु इज प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से ऑल द डिफेंस फोर्सेस? पहले रिटर्न का सिंप्लीफाई कैसे करना है, फिर एसएसबी के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तेरे को लगते हैं कि वन शुड इनकलकेट इन हिज ओन पर्सनैलिटी, सो व्हाट शैल यू डू? रिटर्न का तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अगर एनडीए का है उसको 11 और 12 के साथ प्रिपरेशन करना होगा। सीडीएस का है तो उसको करना होगा कॉलेज के साथ प्रिपरेशन। तो एक चीज पहले हम लोगों को जान लेना है कि टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। टाइम मैनेजमेंट अगर ना हो तो फिर कॉलेज में या फिर स्कूल में मार्क्स अच्छा, कम आ जाएगा, फिर सॉरी टू एसएसबी स्टॉप में। यू, सॉरी टू स्टॉप यू। देख यार, आजकल बीइंग ए टीचर, मैंने यहाँ मेरठ में भी और बाकी जगहों पे भी देखा है कि बच्चे स्कूल भी ऐसे करते हैं जैसे आईआईटी के साथ है, कि बस नाम के लिए स्कूल कर दिया, वो डेमो स्कूल, और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए भी करते हैं। तो डू यू थिंक दैट इज रिक्वायर्ड? नहीं, मेरा तो सर नॉर्मल सा था, क्योंकि स्कूल में अगर मैं 100% दे रहा हूँ तो मेरी एनडीए में भी 100% ही दूँ, क्योंकि बोथ आर एक्चुअली इम्पोर्टेंट इन लाइफ। क्योंकि किसी को नहीं पता व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल रिजल्ट, कि यहाँ पे पेपर रिटन क्लियर भी हो, एसएसबी का नहीं पता, एसएसबी भी क्लियर हो गया, मेडिकल का नहीं पता, मेरिट का नहीं पता, तो फिर एक चीज में पूरा देने की वजह से और एक चीज अगर गड़बड़ हो गया, फिर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है ओपन नहीं रहेगा हम लोगों को। क्योंकि स्कूल का भी देखे, कॉलेज का भी देखे, और मतलब एनडीए वगैरह का भी अगर देख ले तो भी हो जाएगा। ज्यादा तो पढ़ना नहीं होता यहाँ पे, मेनली अगर डेली हम लोग देखें तो 3 to 4 आवर्स अगर दिया जाए। स्कूल का प्रिपरेशन में अगर साइंस बैकग्राउंड है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सारे तो चीजें ऑलरेडी कवर अप हो जाती। फिर इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा फोकस के लिए इंग्लिश में रीडिंग करना होता है, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कोई बुक्स पढ़ते उससे इंग्लिश हो जाता है सिंपल सा। मेनली इशू आता है कि कोई आर्ट्स सेक्शन में अगर साइंस का स्टूडेंट है या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट है तो साइंस, तो वो है मेजर मेजर इशू। तो उस जगह पे ज्यादा फोकस करना है। मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो मुझे पॉलिटी ज्यादा पढ़ना था, जियोग्राफी ज्यादा पढ़ना था, तो उस पर मैं टाइम दिया। और स्कूल का जब पढ़ रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री, उससे ही मैं ऐसे पढ़ा कि एनडीए का भी हो जाएगा। सिंपली जब कॉलेज में भी आया, फिर माई कोर्स वाज जूलॉजी में ऑनर्स का था, तो फिर आई हैड टू रीड अ लॉट, सिलेबस वगैरह बहुत बल्कि होता है ऑनर्स का। तो उस टाइम पे भी सेम मेथड अप्लाई किया कि पहले जब एग्जाम आता था 1-2 महीने, तो फिर कॉलेज में ज्यादा फोकस दे देता था, 6-7 घंटा कॉलेज का दे देता था, और फिर सीरियस का 3-4 घंटा। अब फिर जब एग्जाम दूर है 3-4 महीने, इस टाइम दे दिया सीरियस को 6-7 घंटा और कॉलेज को 3-4 आवर्स, ऐसे करके जो है मैनेज करना होता है। अदरवाइज कॉलेज में मुझे जाना ही पड़ता था, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, शाम तक कॉलेज में जाना होता था, 3-4 दिन। तो फिर कॉलेज में भी अगर लाइब्रेरी में बीच में कोई गैप मिल गया तो एट दैट टाइम आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी, और मेरा तो कोई भी नोट्स है एक टॉपिक का बना लेता था, उसको रिवाइज कर लेता था। तो ऐसे इफ यू कैन मैनेज योर टाइम, फिर दोनों जगह पे जो है यू कैन डू बेटर। क्योंकि कॉलेज में भी मेरा परसेंटेज अच्छा था, स्कूल में भी था, और एट दैट सेम टाइम आई आल्सो क्लियर्ड ऑल द रिटन एग्जाम आई हैव अपियर्ड फॉर। तो ये है तो सिंपल सा रिटर्न का। एनसीसी थी तुम्हारे पास, एनसीसी? नो सर।
कॉलेज में एनसीसी नहीं एक ये था, भी फिर बहुत बड़ी, एनसीसी में बहुत बड़ा पेपर वो है मिसकंसेप्शन के एनसीसी होगी तो एसएसबी हो जाएगी। अच्छा, नहीं गेम्स कितने खेले तुमने, जैसे फुटबॉल, इस तरह कौन कौन से गेम्स खेले? गेम्स में मैं सर क्रिकेट खेलता था और रनिंग करता था मेनली सर। एस्थेटिक ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे कोलकाता में, सॉल्ट लेक हम्म। स्टेडियम में कनेक्टेड है, तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था थोड़ा, रनिंग वगैरह का। तो ये दो चीज ही है, इसके अलावा कुछ किया नहीं। और अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी सिर्फ डिबेट हॉबीज क्या थी तेरी और जो लिखी वहां पे, और जो है एक्चुअली, क्योंकि मैं बोलता हूँ झूठ मत बोलो। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअल में सर आई लव टू लिसन सॉन्ग्स। मैं बहुत मूवीज देखता हूँ। फिर उसके अलावा सर आई रीड बुक्स। और बाकी सर मॉर्निंग पे जो है कभी कभार साइकिल लेके निकल जाता हूँ, जब मन होता है, वेदर अच्छा होता है तो साइकिलिंग भी हो जाता है। फिर यही है बताओ। अच्छा, आई रिमेम्बर वो गर्लफ्रेंड वाला क्वेश्चन क्या था इंटरव्यू में? ऐसे मतलब once the interview officer asked me this, you must have a girlfriend. I replied him, no, I do not have any girlfriend. So he asked why. So at that time, sir, I answered, sir, I have not met with someone who deserves a smart guy like me. She started. हम्म। Okay, so when we will find, when that deserving person will come. Okay, you are finding. No, sir, I am not finding. That person will find me. अच्छा चल, That was फोर there. चार इंटरव्यू है ना, 4% इंटरव्यू यू हैव फेस्ड, तो मतलब एनी मेमोरीज यू हैव फ्रॉम देम, कुछ याद हो ऐसी बातें? बात में सर इंटरव्यू का मेरा इंटरव्यू चलता नहीं, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट में अगर देखो ओटीए में गया इलाहाबाद में, इंटरव्यू लास्टेड फॉर 5 मिनट्स ओनली। और आईएमए का इंटरव्यू 2 मिनट चला, इसके यार अलावा 5 मिनट एयरफोर्स का में इंटरव्यू। बस इंटरव्यू खत्म, 2 मिनट में खत्म, क्या पूछा उसने? सर ओटीए में जब गया था, दैट इंटरव्यू ऑफिसर आस्क्ड मी, क्योंकि जस्ट 14 या फिर 15 days बैक आई गॉट रिकमेंडेड फॉर एयरफोर्स। So हम्म। he asked me your citizen is cleared or not. Then he asked me, where you will join, एयरफोर्स या फिर आर्मी में। उसके बाद सर ही जस्ट आस्क मी कि बाकी प्लानिंग्स वगैरह क्या है, इलाहाबाद घूमने का क्या। उसके बाद फिर सिंपली आस्क इसके पहले क्या हुआ, प्रिपरेशन कैसे किया, अभी बोला ओके हम्म। यू माइट लीव। ये था। और भोपाल में तो गया सर, दैट वाज 2-3 minutes होगा, क्योंकि डिप्टी प्रेसिडेंट जस्ट आस्क मी व्हाट यू आर करेंटली डूइंग, वी आर वेटिंग फॉर द जॉइनिंग लेटर ऑफ ओटीए। फिर ही सेड कि ओके, ओटीए का ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, फिर आईएमए का कितना होता है। फिर ही सजेस्टेड मी यू जॉइन ओटीए, यू आर यंग इनफ, you will become officer earlier and you can also get permanent commission from there only. Okay, sir, but here I am getting the opportunity to get permanent commission at an early age. So I think he is better option for me. Okay, okay, whatever you feel like it. Okay, it's fine. You और know कुछ what, तो Priyojit, बाकी around 11 years back, I had a student like you, and he also got recommended 4 times, and he had options to join Navy, Air Force, IMA, as well as OTA. Okay, so he was like very good, and he was like in your case, I think merit could not help you out in Air Force flying, but in his case, it was Air Force flying also. So he was very confused. Now I am taking your interview. At that time, these interviews were not so much in common. So there are many students I am not even in touch with. So, his case and your case remind me of the same thing, because his last two SSB, he was only interviewed for like 5 minutes. So once the SSB has confirmed that you have qualities, है ना, सारी कहानी है OLQ की। यार क्वालिटीज का मतलब होता है गुण। इफ यू हैव सर्टेन क्वालिटी इन यू, दैट यू आर ऑनेस्ट, यू आर ट्रूथफुल, देन that quality cannot go in 15 days and cannot come in 15 days. So SSB also exactly. knows it, that if something is Right. there, it will remain. So अच्छा, कुछ मेडिकल का बहुत ज्ञान हो गया होगा तुमको उधर। मेडिकल यू मस्ट बी नोइंग लॉट ऑफ थिंग। तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल पीपल के यार, मेडिकली अगर रहना है थोड़ा सा फिट, तो किस चीज पे ध्यान दो? पर मेडिकल ऐसा है कि no one can predict what is going to happen in medical. If it's medical, they if you are also fit in civil standard,
ऐसा हो सकता है दैट यू आर अनफिट इन डिफेंस स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि डिफेंस का जो स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है मेडिकल ऑफिसर्स विल फॉलो देम स्ट्रिक्टली। सीधी सी बात है उन लोगों का, क्योंकि एयरफोर्स में 70 और 80% कैंडिडेट्स को मिल गया था हाइपर। बाहर आज आके हम लोग टेस्ट करवाए तो फिर वी ऑल वेर अंडर द नॉर्मल जो पैरामीटर उसमें। फिर बेस हॉस्पिटल में वेन वी वेंट, फिर ब्लड लिया एंड रिपोर्ट आया, वहां पे देखा गया कि बाहर का पैरामीटर में और डिफेंस का पैरामीटर में चेंजेस है थोड़ा बहुत। लेकिन वहां पे बाहर में 8 तक चलता है, डिफेंस में शायद 6.5 या फिर 7 तक ही था। तो ऐसे करके डिफेंस स्टैंडर्ड मेंटेन करना अभी तो एवरीथिंग इज डिफेंस का पैरामीटर तो इज नॉट इन हैंड ऑफ अस, तो उसका तो बता नहीं सकते। अदरवाइज मेडिकल के लिए आई फील की टेंशन ना लेना ही बेहतर है। जब रिकमेंड हो गए तो मेडिकल भगवान के ऊपर छोड़ दो। यार अगर मतलब होना यू है मस्ट बी नोइंग लॉट ऑफ गाइज एंड आई ऑल्सो नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। लोग मेडिकल के डर में एसएसबी अटेम्प्ट ही नहीं करते। मालूम है, दे तो फील लाइक आई एम मेडिकली अनफिट तो मैं जाऊं ही नहीं। देखो यार, मेडिकल में इतना, डू यू नो बाय द वे कि व्हाई इट इज सो हार्श इन मेडिकल्स? जैसे तेरे टीथ की प्रॉब्लम थी, दैट वाज नॉट अ बिग डील, एज व्हेन इट यू यस, कंपेयर इट टू ए सिविल लाइफ, इट इज नॉट अ बिग डील। लेकिन राइट, यार, टूथ अलाइनमेंट अगर ठीक से नहीं होगा तो यू कैन नॉट च्यू योर फूड प्रॉपरली, यू विल बी चूइंग योर चीक्स फ्रॉम इनसाइड। अब तू सोच के देख, ये कंडीशन अगर मान ले सपोज यू आर पोस्टेड इन ले लद्दाख और हाई एल्टी सियाचिन, वहां पे आ गई, बिकॉज फ्रोजन, मोस्ट ऑफ द फूड कंटेंट इज फ्रोजन टाइप्स, वहां पे ये इशू आया तो यू विल नॉट बी एबल टू ईट, यानी यू विल नॉट बी राइट, गेटिंग न्यूट्रिशंस, देन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। अब तू सोच के देख, फॉर ए सिविलियन ही विल नॉट गो टू सियाचिन फॉर हिज डेली जॉब। तो ये प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मल है फ्रॉम सिविलियन डॉक्टर्स के हिसाब से, थोड़ा आराम से खाओ, कम टफ खाना खाओ, सिविलियंस कैन डू दैट। बट बीइंग ए फौजी, यू हैव टू बी फाइटिंग फिट फॉर एनी कंडीशंस, एनी एटमॉस्फेयर, है ना? तो ये बॉडी की कंडीशंस में होता है कि फॉर ए सिविलियन मैनी थिंग्स आर फिट, बीपी वगैरह बिलो नॉर्मल हो, ठीक है, लेकिन आर्मी स्टैंडर्ड्स हैव टू बी लाइक यू हैव टू परफॉर्मिंग इन स्नोज, माउंटेन्स, ऑल दीज थिंग। तो इसीलिए आई विल ऑलवेज टेल के यार, कीप योर सेल्फ, अपना वेट मेंटेन करो, बस दिस इज इन योर हैंड। उसके बाद एवरीथिंग इज हाँ, लेफ्ट ऑन मेडिकल्स ओवर देयर। सो अभी प्रियोजीत क्या ज्वाइन कर रहे हो? कब ज्वाइन कर रहे हो? करंटली फर्स्ट टर्म जर्नी होती है। ओके। उसके बाद सर आई हैव अ प्लान टू स्विच टू आई। ओके, सो ऑल सेट फॉर ओटी? यस, रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी? फाइव यस, किलोमीटर्स तो पहुंचना है भाई, है ना? सो यू विल एंजॉय ओवर देयर इन ओटीए। एंड अच्छा, एक जो फाइनल बात मेरे को तेरे से पूछनी है प्रियोजीत, लाइक हाउ, व्हाट डू यू थिंक इफ आई आस्क यू टेल मी थ्री थिंग्स विच ए पर्सन शुड हैव फॉर क्लियरिंग एसएसबी, थ्री थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो व्हाट डू यू थिंक दे विल बी? तीन वर्ड्स में ही अगर तुम बोले तो। और सर ट्रूथफुलनेस बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ओके। दिस विल ब्रिंग द कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड। सेकेंड चीज है कि टेंशन फ्री रहना वहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मिसअप हो जाता है things। और थर्ड सर, वो थर्ड को मैं पहले देना चाहता हूँ, वो होता है कि फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट टास्क, एग्जैक्टली। कि पूरे 100% देना प्रेजेंट टास्क। वो जो भी एग्जैक्टली। हो गया पीछे भूल जाओ, प्रेजेंट टास्क में 100% दो। ये जो तुमने थर्ड वाली फर्स्ट में बोली है ना, आई गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट, आई एक्चुअली गिव ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स दिस थिंग, बट अभी सब देख रहे हैं, ये सबके लिए है। यू नो, देयर वर थ्री पीपल इन ए शो इन यूएस, ठीक है ना? दे वर थ्री रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, इलॉन मस्क, बिल गेट्स एंड जेफ बेजोस। इन तीनों को नहीं मालूम था कि ये तीनों सेम शो पे आ रहे हैं। वो विंफ्री शो आता था पहले, है ना, उसमें थे। तो इन तीनों को अलग अलग रूम में रखा एंड दे वर आस्क्ड के राइट ओनली वन वर्ड विच इज कंट्रीब्यूटेड टू योर सक्सेस, राइट वन वर्ड जिसकी वजह से यू आर सक्सेसफुल। इन तीनों ने वो वर्ड लिखा, इट वॉज इन ए पॉट, वो पर्ची जो थी पॉट में थी। देन व्हेन दे एंटर्ड द शो, दे सॉ ईच अदर एंड दे मेट ईच अदर। तो द होस्ट एंटर्ड एंड शी ओपन दी पर्चियां कि व्हाट, हु रोड व्हाट, and you won't believe it that all three of them wrote one thing and it was focus, कि
once you are completely focusing on your task which you are doing, जो हो चुका जो आने वाला है वो नहीं, जो तुम कर रहे हो, तो you will get 100% results. So guys, this was Priyoji Datta, and we'll call you, क्या कहते हैं उसको, चौका दत्ता, चौका मारे हो तुम, है ना? So if you have got any queries or you want to ask me anything, then feel free to write in the comments below, and please share this YouTube video if you felt like this is helping you a little bit or not. And Datta, for you, all the very best for training. Thank you, sir. Be in touch once you joined OTA, क्योंकि तेरा कोर्स कौन सा है अभी? 121, sir. हाँ, तो मेरा तो 82 था, तो अच्छा है, यू गो टू फिलोरा ओनली, माइंगम नहीं, बी ए पेंथर, एंड देन गो टू पुंछ इन में, देन अगेन पुंछ इज ऑल्सो ए पेंथर, है ना? सो यू विल बी अ बॉन्ड पेंथर जस्ट लाइक मी, बट आई जॉइंड ओटी एंड आई में वो। चल दत्ता, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, Thank हैव you, ए sir. गुड Thank you. टाइम, एंजॉय योर डेज, एंजॉय ट्रेनिंग एज वेल। ओके, बाय दत्ता, टेक Yes, sir. केयर।